Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates. Women's health is of utmost importance. It is important to have knowledge and awareness about vaginal cancer, given its influence on women's health. This cancer type that is frequently disregarded needs to be taken seriously. From prevention to early identification and treatment, educating women with knowledge can greatly improve results. Together, let us explore the specifics of vaginal cancer. By collaborating, we can promote preventative healthcare policies that put women's health first. Welcome, everyone. I'm Dr. Soumya Saluja from SIP Media. And to help us navigate the complexities of vaginal cancer, we have with us the distinguished expert, Dr. Sarita Kumari. Dr. Sarita Kumari is a highly respected gynecological oncologist with a distinguished career in the diagnosis and treatment of cancers affecting the female reproductive system. She specializes in managing ovarian, uterine, cervical, and vaginal cancers, offering her patients comprehensive care that includes prevention, early detection, surgical interventions, and non surgical treatments. Dr. Sarita's extensive experience and dedication to her field are evident through her active involvement in medical research and education. As a project consultant for the intermittent PARP inhibitor in recurrent ovarian cancers, she has significantly contributed to the development of innovative diagnostic and treatment methodologies, enhancing the standard of care for gynecological oncology patients. Her role as a fellow at the International College of Robotic Surgeons further highlights her commitment to advancing medical knowledge and improving patient outcomes. Additionally, Ma'am worked as an assistant professor at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, where she was deeply involved in both teaching and research. Her dedication to the field is also reflected in her position as a junior editorial board member for the International Journal of Gynecological Cancer. In addition to her clinical expertise, Ma'am is known for her compassionate approach to patient care and ensuring that her patients receive personalized treatment plans tailored to their specific needs. Her dedication to her profession and patients is reflected in the numerous accolades and recognition she has received throughout her career. Dr. Sarita, Tip Media welcomes you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. And ma'am, we all understand that women, manage everything in their households, yet they take their own health very lightly. And I believe that women, particularly mothers, they should have comprehensive information about all significant aspects of their health. And this includes cancer. So I'm going to start this discussion with a very basic question that what is vaginal cancer? Okay. First of all, the thing that you picked up that women never take their own health in priority is very right. Because I have seen in my career, like they will come to hospitals only when they are pregnant, or if they have been diagnosed with some disease which they feel कि अब तो जाना ही पड़ेगा, तब आते हैं वो, अदरवाइज वो नहीं आते. एंड प्रेगनेंसी ही एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है फॉर मेनी women in India still. So since we have selected this topic of vaginal cancer, so what is vaginal cancer? अगर आप if you want to see कि ये कितना common है, तो it constitutes only 1% of all the cancers which affect women. Okay. And if we see the data from the International Agency for Research on Cancer, which is the WHO site, so you will see that only 2 to 3 of every 100,000 women are affected with this vaginal cancer. Okay. So it is a rare cancer. But problem इससे खत्म नहीं हो जाती कि बीमारी बहुत रेयर है तो उसके बारे में हमें क्यों पता होना चाहिए. अगर कोई बीमारी रेयर है तो उसके बारे में और भी ज्यादा पता होना चाहिए, बिकॉज उसका ट्रीटमेंट भी उतना रेयर होता है. एंड द पेशेंट शुड नो दैट अगर किसी को ये ट्यूमर है तो वेयर दे गो, व्हाट इज द ट्रीटमेंट. सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. अब वजाइना इज अ मस्कुलर ट्यूब
which जी connects our uterus to the external genitalia, as everyone जी knows. जी So, any tumor which arises from the cells which are lining the surface of vagina, जी that is known as vaginal cancer. जी Now, it is most common type is squamous cell carcinoma. जी This is the most common type, or more than जी 90%. But 10%, there are other types as well, like adenocarcinoma, adenosquamous, neuroendocrine, carcinosarcoma, sarcoma, adenoid cystic tumor, या फिर germ cell melanoma, lymphoma, ये सारे बहुत रेयर टाइप्स हैं. तो जी हमें ये पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन 90% जो है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है. जी जी मैम। और आपने जैसे बोला कि वैजिनल कैंसर एक बहुत रेयर कंडीशंस में से एक है, पर तब भी उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक उससे भी बड़ी बात होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि ये किस वजह से होता है। सो व्हाट आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ वैजिनल कैंसर? Okay, so see, if you look at other cancers and compare vaginal cancer to them, जी almost 90% of cancers which are seen in the vagina, they are mostly related to other cancers. Maybe जी cervix का कैंसर है जो वजाइना में भी ग्रो कर रहा है, या फिर जी बात पलवा का कैंसर है जो वजाइना में ग्रो कर रहा है. जी तो इसके रिस्क फैक्टर भी ना बहुत सारे रिलेटेड टू दीज अदर कैंसर्स ही होते हैं. जी तो द प्राइमरी रिस्क फैक्टर अगर हम देखें तो फर्स्ट वन विल बी एज. It is similar ओके to all other cancers. So this cancer is more common in women who are more than 75 years of age. ओके राइट And the second one is the human papilloma virus infection. जी As you know that this is a sexually transmitted infection, and जी this virus has been found in almost 70 to 80% of vaginal cancers. Okay. ओके राइट And this virus is found in almost 97% of cervical cancers. So, ओके since all these organs are in a proximity, so राइट this is the most acceptable cause of vaginal cancer as of now. ओके There are factors like if you have had any prior cancer, like cervical cancer or vulval cancer, as I told, or if यस somebody has underwent a hysterectomy. एंड राइट हिस्टेक्टमी में प्री इन्वेजिव प्री कैंसरस चीजों के लिए हिस्टेक्टमी हुआ, लाइक सर्विक्स में प्री कैंसरस लीजन था उसके लिए हुआ, तो देन वो भी एक रिस्क फैक्टर है. जी दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो अब तो कॉमन नहीं है बट पहले था. जिन विमेन को एक ड्रग होता था जो कि प्रेगनेंसी में यूजुअली प्रिस्क्राइब किया जाता था टू प्रिवेंट प्रीटर्म लेबर और जी मिसकैरेज. जी इट्स वाज डाइथाइल stilbestrol. It has been ओके banned now, but ओके between 1940 to 1970, it was regularly used, and ओके it led to formation of vaginal cancer in daughters of those women who ओके received this drug during pregnancy. And the ओके odds ratio was so high that as soon as the first research paper came out राइट that this is the drug which is causing this cancer in young women, जी this drug was withdrawn from the market for this ओके indication. राइट So, another risk factors could be any person who is immunocompromised, like having human HIV infection जी और some other systemic problems जिसमें immunity कम हो जाती है, जैसे SLE. जी स्मोकिंग स्मोकिंग जी भी एक मेजर रिस्क फैक्टर है. और जी क्योंकि स्मोकिंग HIV इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने से HPV इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है. जी तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं. जी एंड जो लास्ट फैक्टर है वो किसी भी फॉर्म ऑफ वजाइनल इरिटेशन, जैसे ओके बहुत टाइम से पेसरी यूज कर रहे हैं प्रोलैप्स के लिए, जी तो वो वजाइना की लाइनिंग है वो बहुत इरिटेट होती रहती है, एंड वो लॉन्ग टर्म में उसमें कैंसर डेवलप हो सकता है. जी जी एंड अब जैसे आपने बोला कि बहुत सारी women देर एट अ हाई रिस्क एंड तो इस हाई रिस्क की वजह से अगर किसी को वैजिनल कैंसर के बारे में और जानना हो या उसको पता लगाना हो कि किसी को ये हो गया है, तो इसके अर्ली वार्निंग साइंस या कोई सिम्टम्स हो सकते हैं। सो व्हाट आर द अर्ली वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद वैजिनल कैंसर? ओके, सो आई वुड से कि साइंस या तो तब हमें पता चले जब कैंसर अर्ली स्टेज में है या एडवांस जी स्टेज में है. तो जी अर्ली स्टेज में साइंस आए तो ही बेनिफिट है पेशेंट के लिए, है ना, हेल्थ जी केयर के. जी तो अर्ली बिल्कुल साइंस जो हो सकते हैं वो, मतलब आपका जो पीरियड का ब्लीडिंग है उसमें आपको जी कोई भी एबनॉर्मेलिटी दिखी है, जैसे कि जी हस्बैंड से इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है,
ये जी सर्वाइकल कैंसर का भी रिस्क फैक्टर है, मतलब एक जी साइन है। जी फिर पीरियड्स के बिटवीन ब्लीडिंग हो रही है, या फिर जी जिनको मेनोपॉज हो गया है, मेनोपॉज जी होने के बाद उनको वेजाइनल ब्लीडिंग हुई है, तो जी एनी फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल ब्लीडिंग जी इज वन ऑफ एन अर्ली साइन। जी अदर चीजें जो हो सकती है, मे बी उनको वेजाइनल डिस्चार्ज काफी बढ़ गया है, जो जी नॉर्मल था किसी लेडी के लिए उससे ज्यादा हो गया है, या फिर जी इंटरकोर्स टाइम पेन है, नीचे पेल्विक एरिया में पेन है, जी मेडिसिन से रिजॉल्व नहीं हो रहा, या फिर जी कुछ केसेस में इवन वजाइना में ट्यूमर फील भी होता है, लाइक ओके एक अगर वो बाहर की तरफ है, क्योंकि वजाइना जी 6 सेंटीमीटर की ट्यूबुलर ऑर्गन है, तो जो जी बाहर का हिस्सा है, नीचे का 1/3 पोर्शन, अगर उसमें ट्यूमर बना है तो वो फील भी हो सकता है। ओके सो दीज आर द अर्ली साइंस। एंड लेट लेट स्टेज में ट्यूमर स्प्रेड होने की वजह से पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि जी वो फैटिक ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उस वो हो जी सकता है। फिर यूरिन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सारी चीजें हो सकती है। इट मीन्स कि कैंसर हैज स्प्रेड बियॉन्ड द वजाइना एंड ओके इन्वॉल्व अदर ऑर्गन्स आल्सो। ओके एंड किसी की अगर ये किसी ने अपने अंदर इस तरह के कुछ सिम्टम्स अगर नोटिस किए हों और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो हाउ इज वैजिनल कैंसर डायग्नोस्ड बाय अ डॉक्टर? तो सी, पहला डायग्नोसिस तो जैसे आप सोच सकते हो कि वेजाइना में अगर ट्यूमर है या कुछ भी जी प्रॉब्लम बन रही है, तो अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं एंड जी उनका पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, जिसको हम जी पेरिफेरल एग्जामिनेशन बोलते हैं मेडिकल जी टर्म में, तो जी वो किया गया हो, भले ही हो सकता है किन्हीं को कुछ सिम्टम्स हो तब किया गया हो, या फिर कोई जी रेगुलर अपने विजिट के लिए गए और उनको ये एग्जामिनेशन किया गया हो और उसमें डिटेक्ट हो जी गया, तो एक तो ये जी है। जी दूसरा पैप्समियर। पैप्समियर जो सर्वाइकल कैंसर प्री कैंसर डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं, तो जी जी पैप्समियर में सेल्स आते हैं, जो जी भी रीढ़े का ऑर्गन्स है उससे सेल्स लिए जाते हैं, तो उसमें जी वजाइनल कैंसर भी डिटेक्ट हो सकता है, क्योंकि जी दोनों का कॉज सेम है। जी थर्ड है कॉल्पोस्कोपी। ओके अगर हम कॉल्पोस्कोपी कर रहे हैं, कॉल्पोस्कोपी इज ए scope, it is a magnification camera to see cervix, vagina and the vulva. जी Okay, so when we जी are doing for looking at the cervix, उस टाइम पे राइट ये वजाइना में भी प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं, एंड देन वी कैन टेक अ बायोप्सी। जी या फिर हो सकता है कि किन्हीं का किसी रीजन की वजह से एमआरआई हुआ हो या सीटी स्कैन हुआ हो, और उसमें इंसिडेंटली डिटेक्ट हो गया कि इस थोड़ी लग रही है। जी ओके और किसी का अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो गया है, तो हाउ वुड अ डॉक्टर ट्रीट द कंडीशन? आई मीन व्हाट आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज available for managing vaginal cancer? Okay, see, it depends on the stage of the tumor, जी which type of tumor। जो मोस्ट जी कॉमन टाइप है स्क्वेमस सेल, उसके बारे में जी बात करेंगे, एंड जी ऑल्सो द पेशेंट्स विजिट, कि जी पेशेंट को क्या चाहिए। फिर से उनका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है या फिर पोस्ट मेनोपॉजल है। जी मोस्टली पेशेंट्स पोस्ट मेनोपॉजल होंगे, बट कुछ पेशेंट्स हो सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी आए हैं। तो जी जो मोडालिटीज अवेलेबल है वो है सर्जरी, कीमोथेरेपी, ओके रेडिएशन एंड हाँ जी टारगेटेड थेरेपी, जिसमें ना वैसी दवाइयाँ दी जाती है जो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करता है, एंड वो जी रिसेप्टर ट्यूमर सेल्स पे होता है, तो उससे जो जी बॉडी में साइड इफेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के, वो कम हो जाते हैं। जी अब स्टेज पे कैसे डिपेंड करता है। सर्जरी एक ऑप्शन है बस स्टेज 1 में। स्टेज 1 जी मतलब जो ट्यूमर है वो वजाइना तक लिमिटेड है। जी स्टेज 2 मतलब वजाइना के आसपास के टिश्यूज में गया है। जी स्टेज 3 मतलब वो और भी ज्यादा स्प्रेड हो गया, एंड जी बट नीचे के हिस्से में ही है। एंड स्टेज हम्म 4 मतलब वो बाकी ऑर्गन्स में भी चला गया है बॉडी के, अगर जी हम से देखें तो जी स्टेज 1 में ही बस सर्जरी का ऑप्शन होता है। एंड हम्म सर्जरी भी डिपेंड करती है कि ट्यूमर जो है वो वजाइना के किस हिस्से में है, ऊपर के 1/3 हिस्से में है, बीच में है या नीचे के तरफ है। उसके जी अकॉर्डिंग सर्जरी को टेलर किया जाता है कि क्या जी सर्जरी होनी है। जी एंड बट कोई पेशेंट स्टेज 1 में आए, ये बहुत ही रेयर है। इट इज नॉट, मतलब आई हैव सीन वन पेशेंट प्रेजेंटिंग इन स्टेज 1। ओके एंड दूसरे जो मोडालिटीज हैं,
स्टेज 2 से लेके स्टेज 4, अर्ली स्टेज 4A, मतलब 4A मतलब जो अभी नीचे के ऑर्गन्स तक ही फैला है। जी उसमें जो ट्रीटमेंट होता है उसमें ट्रीटमेंट को बोलते हैं कंकरेंट कीमो रेडिएशन। मतलब हम जी। रेडिएशन देते हैं, हम्म। एक्सटर्नल रेडिएशन अलोंग विथ इंटरनल रेडिएशन। एंड जी एक्सटर्नल बीम रेडिएशन के साथ एक कीमोथेरेपी ड्रग दिया जाता है, सिस्प्लैटिन, जी तो रेडिएशन जी के इफेक्ट्स को इनहेंस करता है। जी। तो ये पूरा ट्रीटमेंट जो है वो कंकरेंट कीमो रेडिएशन है। ये ही मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है जो ऑलमोस्ट स्टेज 2 से 4A तक दिया गया। 4B मतलब ट्यूमर ऑलरेडी नीचे के अलावा लंग्स में, लिवर में, बोन में, फैल चुका है। ब्रेन में, कहीं पे और चला गया, देन इवन रेडिएशन विल नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द प्रॉब्लम। पहले उन ओके। कीमो देते हैं ताकि ये जो हम्म। बाहर का स्प्रेड है ट्यूमर का उसको कम किया जाए। अगर उससे रिस्पॉन्स आता है देन उसके बाद जो नीचे का ट्यूमर वाला एरिया है उसको फिर रेडिएशन दिया जाता है। जी एंड फोर्थ थिंग जो टारगेटेड ट्रीटमेंट बोला था वो अभी बहुत एक्सपेरिमेंटल है जी एंड बहुत कॉस्टली भी हैं ये ड्रग्स। तो जो जी सूटेबल पेशेंट्स होते हैं, जैसे जिन उनमें पहले हम रिसेप्टर टेस्ट करते हैं कि ये रिसेप्टर इनके में पॉजिटिव है या नहीं। एंड जी। जिसमें पॉजिटिव है तो उनमें ये एक ऑप्शन रहता है। लाइक इन ओके वेस्टर्न वर्ल्ड दे रूटीनली गिव टारगेटेड ट्रीटमेंट। ओके टारगेटेड ट्रीटमेंट फॉर वेजाइनल कैंसर इज मोस्टली बेवेसिजुमैब या फिर ओके। पेम्ब्रोलिजुमैब। पेम्ब्रोलिजुमैब एक टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी है। तो जी सारी चीजें हैं जो हमें आइडिया होना चाहिए कि ये भी एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। जी जी मैम। एंड अभी जैसे आपने बोला कि बहुत रेयरली होता है कि पेशेंट स्टेज 1 में ही डॉक्टर के पास आ जाता है। तो उससे बेहतर है कि हम पेशेंट्स को उस स्टेज तक जाने ही ना दें। हम उनको बचाव के थोड़े से तरीके बताएं। सो आर देयर एनी प्रिवेंटिव मेजर्स दैट वुमेन कैन टेक टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ vaginal कैंसर? Yes, I think this is one of the few cancers which you can say that it is preventable, ओके। like राइट। cervical cancer, because दैट्स गुड न्यूज। because cause हमें पता है it is HPV हाँ जी। infection। तो अगर जी हमें पता है कि 90% ऑफ ट्यूमर्स HPV इन्फेक्शन से हो रहे हैं, सो जी इफ वी कैन डिटेक्ट दैट HPV इन्फेक्शन और इफ वी जी कैन प्रिवेंट दैट HPV फ्रॉम इन्फेक्टिंग, जी सो दोज विल बी द प्रिवेंटिव मेजर्स। तो जो जी प्राइमरी प्रिवेंशन हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में वो होगा HPV वैक्सीनेशन। तो जी। HPV वैक्सीनेशन विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर क्योंकि वो मोस्ट कॉमन है। एंड जिन जिन विमेन को लगा है उनमें वजाइनल कैंसर भी नहीं होगा, ओके। ग्रेट। as it is almost 99% effective. And ठीक है। the second thing which we can do is that मैंने आपको बताया कि हमें अपना रेगुलर पेल्विक एग्जामिनेशन, अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो इग्नोर नहीं करना, लाइक डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, सो रेगुलर पेल्विक एग्जामिनेशन। और यू गो फॉर स्क्रीनिंग, लाइक वी गो फॉर स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर बाय जी HPV टेस्ट और a pap smear. So जी both of these things can be helpful in detecting vaginal cancer also. जी Okay. Third would be since HPV is sexually transmitted infection. So if we जी know that what are the safe sexual practices जी। to prevent from this infection. And fourth, no smoking. ओके। Because because smoking is one of the indirect causes for this cancer, क्योंकि उससे जी immunity कम होने की वजह से HPV जो है वो काफी लंबे टाइम तक वहाँ पे persist कर जाता है हमारे organs ओके। में। जी एंड उसकी वजह से कैंसर डेवलप होता है। तो इफ वी कैन टेक केयर ऑफ दी स्मॉल थिंग्स वी कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट इन प्रिवेंशन। यस एब्सोल्युटली। और अब चलते हैं उनकी तरफ जिनमें बेचारों में अभी ये डायग्नोस हुआ है। सो उनको बहुत सारे सपोर्ट और बहुत सारे आश्वासन की जरूरत है कि सब ठीक हो जाएगा। सो इन व्हाट वेज कैन वन प्रोवाइड सपोर्ट टू अ लव्ड वन फेसिंग डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? यू कैन प्रोवाइड सपोर्ट बाय जस्ट बीइंग देयर फॉर देम। राइट। पहली चीज राइट। तो मतलब एक तो समझना है कि अगर किसी को कोई डायग्नोसिस हुई है कैंसर की तो वी शुड नॉट जी स्टिग्मा। जी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर विमेन में कोई कैंसर होता है तो फैमिली, बहुत सारे फैमिलीज में वैसे ही उनको ऐसे देखा जाता है कि अब तो क्या यूज है, वी नो आवर बिल्कुल। सोसाइटी। सो वी नो। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट अ विमेन कैन गेट फ्रॉम हर फैमिली, राइट। सोसाइटी, कि राइट। उनको स्टिग्मेटाइज नहीं करना। एंड ऐसे नहीं देखना कि बिकॉज दे आर नॉट, मोस्ट ऑफ द विमेन आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियली,
सो Yes. अब ऐसे प्रॉब्लम्स आती है फैमिलीज में कि हमें एक केयर टेकर चाहिए जो इनका ध्यान रखे, हॉस्पिटल विजिट्स में लेके जाएं, ट्रीटमेंट जी, लंबा होता है, इवन रेडिएशन का जी, ही ट्रीटमेंट 8 वीक्स तक चलता है। अगर जी, साथ में कीमो भी है, बाद में कुछ और ट्रीटमेंट भी है, तो उसमें भी प्रॉपर हॉस्पिटल विजिट्स तो चाहिए। सो जी, हम एटलीस्ट एक गुड लिसनर हो सकते हैं, इमोशनल हम्म, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको जी, असिस्ट कर सकते हैं मेडिकल अपॉइंटमेंट्स में, जी, हेल्थ लाइफस्टाइल एनकरेज करना है उनको, गुड जी, पेरेंट्स को, बिकॉज कैंसर के बाद ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, एपेटाइट चला जाता है, वो सारा जी, मेंटल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं। जी, So that we can do. Somebody could help in providing financial support if जी, somebody needs. Or there are also professional counselor groups, like they do जी, psychological counseling of women and the caregiver, because जी, even the caregiver faces उतना ही trauma जितना patient को होता है. बिल्कुल। एंड आपने जैसे बोला कि ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है और कभी-कभी 8 टू 9 वीक्स तक भी चलता है जहाँ पर उनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। सो हाउ फ्रीक्वेंटली शुड follow-up appointments occur following the treatment for vaginal cancer? ओके, सी इन जनरल जितने भी गायनी कैंसर्स हैं उनका जी, ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 5 इयर्स तक तो हम करते हैं, जी, मिनिमम 5 इयर्स, क्योंकि जी, विद इन फर्स्ट 2 to 3 इयर्स कैंसर वापस आने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है आफ्टर जी, ट्रीटमेंट कंप्लीशन। जी, तो जी, जी, फॉर एवरी कैंसर एंड इवन फॉर दिस वजाइनल कैंसर, जी, इनिशियल ट्रीटमेंट जो कंप्लीट हुआ हमारा, मे बी उसमें 2 मंथ्स 3 मंथ्स लगे, उसके बाद जी, एवरी 3 to 6 मंथ्स विजिट होता है फॉर फर्स्ट 2 इयर्स। जी, उस उन विजिट्स में हम पेशेंट को असेस करते हैं कि ट्यूमर पे रिस्पॉन्स कैसा है अभी तक के जी, ट्रीटमेंट का, फिर जी, और भी उनके सिम्टम्स जो भी उनको फेस हो रहे हैं, जी, फिर फर्स्ट 2 इयर्स के बाद जो विजिट्स हैं वो हम इंक्रीज कर सकते हैं इंटरवल, लाइक वी कैन कॉल देम एवरी 6 to 12 months, एंड वंस दे जी, हैव क्रॉस्ड 5 इयर्स, देन जी, ऑल्सो वी एडवाइज women to follow up yearly. okay. Annual follow-up after 5 years is very Yes, good. yes. And if they live very far away, then maybe they can even visit their local practitioners, because it जी, only needs a gynae examination first of right. all. उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो ही आगे के, एंड इवन आजकल तो बहुत सारे सेंटर्स पे टेली कंसल्टेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, जी, तो फॉलो अप को डिसरिगार्ड नहीं करना। एंड ड्यूरिंग फॉलो अप बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक ट्रीटमेंट तो हो गया, उस टाइम जी, वी वर ओनली फोकसिंग ऑन द ट्यूमर, बट right. आफ्टर somebody has undergone radiation for a vaginal cancer, there the vagina closes, Okay. so they need to learn how to use vaginal dilator, how to Mm-hmm. use local lubricants. Right. The bone health and etc. suffers a lot. So we need to do bone density testing for these patients. We also, Okay. if somebody is very young and she received radiation to the lower Right. area, then the ovary Right. function is gone. Okay. तो वो पूरा मेनोपॉज हो गया, अर्ली मेनोपॉज हो गया, तो उन विमेन को फिर मेनोपॉजल हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होता है, वो सब भी दे आर आल्सो वेरी मच नेसेसरी। Okay. Right. एंड आपने जैसे बोला कि अभी वैजिनल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे मेडिकेशंस हैं जो अभी भी अंडर रिसर्च हैं। सो उन्हीं कुछ नोवेल ट्रीटमेंट्स के बारे में आप थोड़ा सा और बता दें अदर दैन टारगेटेड थेरेपी लाइक इज देयर एनी ऑनगोइंग रिसर्च एम्ड एट डेवलपिंग नोवेल ट्रीटमेंट्स फॉर Yes. वैजिनल कैंसर? Okay, targeted I already discussed. So यस। second one is that there is a lot of study which the researchers are looking at developing improved techniques of delivering radiation, because जी। the way we used to give radiation like यस। 20 years back, we cannot do the same in current era. The machines are राइट। evolving, and राइट। they are using different techniques, different machines, proton beam, etc., to minimize damage to the other राइट। organ. पहले बस रेडिएशन देते थे एंड साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा हैं, मतलब इवन क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी सफर करती है रेडिएशन जी। ट्रीटमेंट के बाद, तो जी। उस पे काफी रिसर्च हो रहा है। जी। इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं उसको, या जी। फिर इमेज गाइडेड, एमआरआई गाइडेड या सीटी गाइडेड, वो है, उस जी। पे काफी अभी चल रहे हैं ट्रायल्स। जी।
जी इम्यूनोथेरेपी आई ऑलरेडी टोल्ड। दूसरा है कि जो प्री क्लिनिकल स्टडीज है, लाइक जेनेटिक स्टडीज एंड मॉलिक्यूलर स्टडीज, जी like what changes occur at the molecular level in these जी women, जी which leads to progression of the cancer, जी और इन केसेस जिसमें ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं आया तो क्यों नहीं आया, उसमें मैकेनिज्म क्या है, तो इन पे भी काफी रिसर्च है। एंड द जी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि सिंस ये बहुत रेयर ट्यूमर है, तो जी आप किसी भी हॉस्पिटल को देखें तो उन्होंने हार्डली, कुछ डॉक्टर्स ने अपने लाइफ टाइम में एक वेजाइनल कैंसर का पेशेंट देखा होगा, तो उससे जी तो सच पॉसिबल नहीं है। सो जी इट्स मल्टी सेंट्रिक कोलैबोरेशन, लाइक इवन ओके इन इंडिया अगर जितने भी ऑन्कोलॉजी सेंटर्स हैं या जी हॉस्पिटल्स हैं जिनमें ऐसे पेशेंट्स आते हैं, उनका एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री हो जहाँ पे हम्म पता हो कि हाँ ये पेशेंट्स हैं, तो अगर वो 40 भी होंगे या 20 भी होंगे तो उनको कंबाइन करके आउटकम देखा जा सकता है कि क्या ओके बेनिफिट हो रहा है उनको। तो अभी इन चीजों पे काफी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एंड इवन जी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेशेंट जी इन दीज ट्रायल्स, हम्म that is where we are lacking in India, so that is also going on. ओके तो अभी इंडिया में इस सब पे भी काम चल रहा है, राइट? हाँ, अच्छा, अब जैसे आपने बोला कि ये एक रेयर कंडीशन है, तो रेयर कंडीशन के बारे में सबको पता होना चाहिए। सो जस्ट टू समराइज द सेशन नाउ, हाउ कैन वी इम्प्रूव हेल्थ लिटरेसी टू रेज अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैजिनल कैंसर, जो उसकी प्रिवेंशन में भी हेल्प करेगा इन पॉपुलेशन इन जनरल? okay. So, first of all, what the government is doing to include comprehensive sex education in schools, that is ओके, the way to start. Like, even the girls should be aware that HPV क्या है, क्या उसके है? वैक्सीन होती है, उसके हम्म, लिए आगे चल के लाइफ में स्क्रीनिंग होती है, तो जी उस लेवल पे if we start then we will be able to reach it. राइट Other things that the healthcare providers and the platform like yours, you all can give accessible information to the patients. जी Um, we also can use social media. हम्म Social media can be a very useful tool to spread awareness for जी these rare tumors. Like जी if even if we have one patient, and even if that patient, if she is willing to give her journey, it will जी a lot of positive impact on the other women. So जी that can be done, and there can be health campaigns or educational programs ओके to spread awareness regarding HPV related cancers. जी And the most important of all is that we have to spread awareness regarding HPV vaccination and regular जी screening. जी सो एचपीवी वैक्सीन और एचपीवी वायरस के बारे में बच्चों को स्कूल एज से ही पता चले तो सबसे बेहतर। So हाँ, on that note, the session was very, very insightful, ma'am. So we really appreciate your presence with us today. And I'm hoping that the enlightening information shared will be valuable to many women out there. Thank you so much for joining us. thank you, Soumya. It was a very wonderful time for me as well, because your questions were very relevant. Like, how should we be able to reach the women? And the health Yes, literacy should be the most important way to go. Thank yes, you. ma'am. Thank you, ma'am. It's really been a pleasure. And for more such informative videos, please subscribe to our channel and press the bell icon for regular updates. And all the women out there, please Dr. Sarita को जरूर सुनिए और उनकी सारी advices को follow कीजिए. Thank you once again, ma'am. Thank you. धन्यवाद. Thank